Hello everyone, welcome to this video. I am Sakshap Sharma, founder of Career Coach and former HR and recruiter of TCS. Friends, it's a big news for all of you who are doing MBA and going to be pass out this year that TCS has announced its MBA hiring for this year, and it's an off-campus drive where any student of any college pursuing MBA is eligible to participate in this drive. Really, really big opportunity, friends. I have been a panel for this hiring in my tenure in TCS. And this opens your doors to opportunities in IT. From this hiring, you get roles like business analyst, SAP consultant, pre-sales, and PMO, and all the techno-functional roles which are there in IT company. So really, it would be a great opportunity for you to start your career in a company like TCS. And yeah, this is not very difficult. Trust me, from my experience of all recruiting these students from this drive, it is not going to be very tough. And since it is a pan-India drive that TCS has launched, that means there are so many requirements which are there, which increases your chances of selection. So let's discuss कि ये hiring क्या है और इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको देखना है and how should you prepare for it is also something we are going to discuss. So stay till end. Starting with this is a TCS career page official where this hiring has been announced. Let your business skill make you the center of attention. That is how they have positioned it. So this is for the MBA student which are going to be passed out in 2025. So batch of 2025. So please note this is only for the batch of 2025. If you are from previous batch, this is not for you. So please make a note. The registration has been started and it will continue till 20th Feb. So you have good time. So, but I would still recommend that you register as early as possible because as we go down, you will see that the center for the written test would be allocated on the basis of first come first served basis. So the early you register, the more advantage you will get in terms of getting the preferred center. And the test for the written test for this is has been scheduled on 10th March. And so the test consists of the aptitude round and aptitude reasoning and the questions around business aptitude. We will be discussing that as well. Okay, so let's have a discussion about what it is exactly. So as I said, it's for MBA students who are pursuing their MBA and different streams. I think all these streams, major streams has been covered. Like you can see marketing, finance, operations, supply chain, IT, general management, business analytics, project management, human resources, and related disciplines. And so one thing to note, this is not the HR hiring. HR hiring is different in TCS. They call it pit stop hiring. So even if you are an HR student, the role that you are going to get out of this drive will be a techno-functional role, not a core HR role. So please make a note, the HR students, still a good opportunity to pursue. And this is for MBA and the equivalent degrees like PGDM. Some colleges and universities offer postgraduate diploma in management. Some colleges call it MMS, Master in Management Studies. So all these are equivalent courses and all of them are eligible, and it should be a full-time course. They are not considering part-time and other modes of doing a course. It should be a full-time course. So application you can apply to TCS Next Step portal. We will cover this as well in the later part of this video, and then you have to go and register yourself there. I will cover this in detail as well. So you have to give a written down in an going to a center of TCS, which is a TCS Ion Center, and it would be allocated on first come first serve basis, as you can see, which is written over here. And then please fill the complete application form. Don't just register and leave it. You have to fill all the complete application form, uploading your resume and apply for the drive till end. Please note, don't leave the application form just by registering. Okay. All right. If you come across any query, these are the numbers that they have shared where you can post it.
But let me know your queries in the comment box. I will also try to answer your queries from my experience. And then coming to the eligibility criteria, friends, please have your attention here, because TCS is the company which never compromise on their eligibility criteria. I myself have done many drives for TCS, and we have never made an exception. So if you think that if you are not eligible but still you will apply, it is not going to work. So please have your attention here. I will explain you the eligibility criteria in detail, starting with your academic percentage. So the first thing is that you should have 60% or above in your 10th, in your 12th, in case if you have done diploma, and your graduation and your post graduation. And when I say post graduation, you must be in the fourth semester now. So till your third semester, your CGPA or your percentage should be 60 and above. Even if it is 59.99, they will not consider. And it should be in every like category, your 10th, 12th, graduation and post graduation. Don't think that you have got 59 in 10th or in others you have got more than 16. No, it should be consistently more than 60% or equivalent. That is, if it is CGPA, if you get your score in CGPA, it should be 6 CGPA and above. Please note, this is the first eligibility criteria. Secondly, your highest qualification should be MBA. You should be pursuing a full-time MBA course from an institute. It should not be correspondence. It should not be from distance education. It should not be from online mode. Please note, your highest qualification should be 2 years of full-time postgraduate course, which should be either MBA, MMS, PGDBA, or PGDM. PGDBA is Postgraduate Diploma in Business Administration, and it should be from a recognized university and into specialization like marketing, finance, operations, supply chain management, IT, general management, business analytics, project management, or related disciplines. I think almost all the disciplines has been covered, and uh, like uh, it is not an exhaustive list since it is an open MBA hiring. I think whatever course you are doing should be eligible. And then now coming back to backlogs. So at max, one backlog or ATKT is allowed. If you have one active backlog, you are still eligible. If it is not, if you have more than one backlog, you are not eligible to apply. Okay, so please ensure that you don't have more than one backlog, and see the last date of application is 20th Feb. So in case if your results for the backlog is awaited, you can wait and then apply, because it would be asked in the application form how many backlogs you have. And then when you go, if you clear the written down, at the time of written down, there is no document check. But when you go to the interview round, if you get selected in the written round, there will be a proper document check, and they will uh, identify this, and they will make you not eligible to appear in the interview. So please ensure that either you clear your backlog before application, otherwise you're not eligible. Secondly, the next criteria is extended education. See, extended education means that like your course should be completed in the stipulated time of that course. For example, if your MBA is of 2 years, you should be completing your MBA in 2 years. It should not be like that you are extending it. अब extend कैसे होता है? Extend ऐसे होता है कि आपको फाइनल सेम तक आपका बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आपको यू वुड नीड 6 more months और 1 year टू क्लियर योर बैकलॉग। उस केस में आपकी 2 साल की डिग्री 3 साल की 3 साल में फिनिश होती है, तो उसको एक्सटेंडेड एजुकेशन बोलते हैं। अगर आप आपने इंजीनियरिंग डिग्री करी है पहले, वो 4 साल में खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई बैकलॉग था या और कोई कारण था जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपका 4 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। प्लीज इंश्योर दैट दिस वुड ऑल्सो बी चेक्ड in TCS. They check when you have started your degree and when you have finished your degree, and it should be as per the standard time of completion. Please note. Secondly, now coming to gap. So gaps more than 24 months are not allowed. 2 साल से ज्यादा के gaps allowed नहीं है. Okay, so in case you have a gap more than 24 months,
अगर आप उस समय कुछ कर रहे थे, इफ यू आर डूइंग अ जॉब देन इट इज फाइन, बट आपको आपके जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे थे तो वो गैप काउंट नहीं होगा, बट यू हैव टू शो प्रूफ इट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। इफ यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट देन दे विल काउंट इट एज अ गैप। ठीक है। गैप्स होते हैं, लोग ड्रॉप लेते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो विच इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा है तो यू हैव टू सी व्हाट वाज द रीजन। अगर कुछ आप कहीं काम कर रहे थे या कुछ और कोर्स कर रहे थे, देन प्लीज कीप द required document handy with you so that you can show it as a proof कि no, it was not a gap but you were occupied something for the full time. Okay. कोर्सेज टाइम, ऐसा ही भी ऑलरेडी डिस्कस, सिर्फ फुल टाइम कोर्सेज अलाउड है, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज अलाउड नहीं है। और ये सिर्फ आपके एमबीए के लिए एलिजिबल, एमबीए के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपने जो ग्रेजुएशन भी जिस डिग्री में किया है, आपने 10th और 12th भी जिस मीडियम से किया है, वो सिर्फ फुल टाइम होना चाहिए। वो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर डिग्री को फुल टाइम चाहते हैं। प्लीज नोट, इफ एनीथिंग इज नॉट फुल टाइम, or they will not consider it as consider you eligible for this drive, please note. ओके, ओपन स्कूलिंग का एक यहाँ पे रिलैक्सेशन है कि जिन बच्चों ने अपना 12th या 10th अगर एनआईओएस से दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं या और कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से करते हैं, तो ऐसे बच्चे अलाउड हैं। ओके। नाउ कमिंग टू वर्क एक्सपीरियंस, बहुत सारे बच्चों का वर्क एक्सपीरियंस होता है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद में आप किसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप ब्रेक लेके एमबीए के लिए जाते हो, तो विच इज ओके, बट योर वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी मोर देन 2 years। देखिए, द रीजन बीइंग दिस इज हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। अगर आपको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस हायरिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको ये चीज एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर भी करनी है, और आपको ये इसके डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो ये आपका एज अ गैप शो होगा। सो प्लीज नोट फॉर ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस, और डॉक्यूमेंट्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज द ओनली प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। प्लीज नोट, अगर आप सोचेंगे कि आप रिलीविंग लेटर दिखा दोगे, सैलरी स्लिप्स दिखा दोगे तो काम चल जाएगा, नो, टीसीएस हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स। बहुत रिजिड कंपनी है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो अगर आपका कहीं वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर दिखाइए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो गैप शो होगा और अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, अगर आप हाइड करेंगे और कहीं पे आपका पीएफ कटता था तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बाद में टीसीएस बैकग्राउंड चेक करता है, और बैकग्राउंड चेक जब वो करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ने आपका पीएफ काटा है, विच शोज कि आप कहीं काम करते थे जो कि आपने हाइड किया है, और हाइड करने की वजह से आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव हो जाएगा। तो भले ही आपका सिलेक्शन भी हो जाए टीसीएस में, लेकिन आपको निकाल दिया जाएगा। सो प्लीज 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 बी केयरफुल, fill your application form with all honesty. Okay. And the age criteria is minimum 18 years and maximum 28 years. So I think this is something which is not a big deal. Most of the students qualify this criteria. Now if we talk about the test pattern, then it is 1.5 hour test, जिसमें 3 sections होते हैं: वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड बिजनेस एप्टीट्यूड। मोस्टली आप लोग को वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में तो पता ही होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपके एमबीए एंट्रेंस के लिए भी आप ये टॉपिक्स की तैयारी करते हैं, तो दिस इज नॉट गोना बी अ वेरी बिग डील। बिजनेस एप्टीट्यूड एक नया टॉपिक, एक नया टेस्ट क्राइटेरिया होता है जिसमें एमबीए हायरिंग में टीसीएस लेता है। तो इसमें जो एमबीए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपके कोर्स में, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और इसमें क्या होता है कि आप भले ही किसी भी कोर्स के हों, मार्केटिंग, फाइनेंस, मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने वर्बल और न्यूमेरिकल में अच्छा किया है और बिजनेस एप्टीट्यूड आपका इतना अच्छा नहीं गया है तो भी नॉर्मलाइजेशंस होता है रिटर्न डाउन का, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दिस इज अबाउट द टेस्ट पैटर्न। एंड टीसीएस हमेशा, लाइक इट्स अ वेरी वेरी honest employer, they never take money from anyone. So if anybody is charging you money for the recruitment process, that is not right. So that is a disclaimer has been shared by them. So I hope this is quite clear to you that what is this drive about. Friends, this is a very good opportunity. Trust me, I have worked in TCS and I have recruited students from MBA hiring, and this is really a gateway to very good career. I have seen students joining from this hiring, taking up good roles and going to abroad very soon. TCS is an MNC, and you get a chance to work with uh, very good customers who are based out of US, Europe and other geographies. और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है जाने को, तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर योर करियर। और इसमें आपका सैलरी अभी तक तो इट वाज 5.89, इसके बाद इंक्रीज किया तो आई एम नॉट श्योर, बट इट वाज 5.8। और अगर कोई मेट्रो सिटी में मिलता है तो शायद उनको एडिशनल सिटी अलाउंस मिलता है, सो इट आई थिंक इट गोज लिटिल बिट अबोव 6। बट स्टिल पैकेज जो भी हो, टीसीएस इज अ बिग ब्रांड। टीसीएस की जब बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ए जॉब, इट इज अबाउट अ करियर। आपको सबसे अच्छे कस्टमर्स के लिए काम करने का मौका मिलेगा, सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। तो जो आपकी लर्निंग होने वाली है, आपको ये आपके आगे के करियर के लिए बहुत हेल्प करेगी। सो प्लीज टेक दिस हायरिंग सीरियसली एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैंने खुद ने इसके इंटरव्यूज लिए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो हम इस हायरिंग की तैयारी के लिए और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप, इस डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस हायरिंग के थ्रू जितने भी रोल्स होते हैं जो अलॉट होते हैं बच्चों को, उस पे भी हम एक्सपर्ट सेशंस बनाने वाले हैं। आई विल ब्रिंग एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, लाइक बिजनेस एनालिस्ट हुआ, एसएपी कंसल्टेंट हुआ, और भी जो अलग अलग रूल्स हैं हम उनके एक्सपर्ट्स को लाके करियर टॉक्स करने वाले हैं। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, यू विल get the access to those meetings as well, wherein you can join and ask your question as well. Okay, so yes, please stay connected with us. We are going to guide you how to prepare for it and how you can increase your chances of selection. Okay, now moving to, as I said in the starting, registration process को कैसे आपको करना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक डॉक्यूमेंट है, लेट मी शो यू दिस। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो लिंक दिया हुआ था, मैं जो रजिस्ट्रेशन लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ये रिडायरेक्ट करेगा, और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ विंडो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आपको दो कैटेगरी दिखेगी, आईटी और बीपीएस। एमबीए के बच्चों को आईटी सिलेक्ट करना है। प्लीज नोट, यहाँ पे बहुत ध्यान दें, आपको बीपीएस सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप बीपीएस सिलेक्ट करेंगे तो आप इस ड्राइव के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, और फिर होता ये है, आप एक बार बीपीएस से फॉर्म भर देते हो, फिर वो चेंज नहीं होता है और आपको कॉल नहीं आता है। सो प्लीज प्लीज इस स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको आईटी ही सिलेक्ट करना है। ओके, देन रजिस्ट्रेशन पेज पे आके आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको ओटीपी से वो वैलिडेट होगा, फिर आपको आपकी आधार की डिटेल्स डालनी है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्म।
ठीक है। जैसे ही आप उसके बाद आपका नाम आप बहुत अच्छे से भरिएगा, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप के डॉक्यूमेंट्स में मिडिल नेम है लेकिन आपने फॉर्म में नहीं भरा है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप और डिटेल्स तो एडिट कर पाएंगे लेकिन नाम थोड़ी एडिट कर पाएंगे, राइट। सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, टाइम देके भरें, ध्यान से भरें, फोकस के साथ भरें। ठीक है, बिकॉज आप पूरी मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं और फिर छोटी स्टेप्स की वजह से, आप छोटी गलतियों की वजह से आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव होता है तो इट वुड बी अ ह्यूज लॉस। सो प्लीज प्लीज केयरफुली फिल ऑल दिस डिटेल्स। देन आपको यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम फिल करना है, क्वालिफिकेशन फिल करनी है, ईयर ऑफ पासिंग। ये हायरिंग 2025 के लिए है तो आपको यहाँ पे 2025 सिलेक्ट करना है। ओके, सोर्स टाइप आप बता सक कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, दैट डजेंट मैटर। ओके, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आपके जो नेटिव प्लेस है या जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ से टीसीएस का सबसे पास वाला सेंटर कौन सा है। टीसीएस के मेजॉरिटी सेंटर्स ऑलमोस्ट हर बड़े स्टेट में है, तो आप उस हिसाब से यू कैन figure out and fill that. Okay, then you have to do the validation from the captcha and then you have to log in. आपको यहाँ पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है, बहुत बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फ्रेंड्स, ये पूरा आपको रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऐसा मत सोचिए आपने रजिस्टर कर लिया तो आपका काम हो गया। नो, यू हैव टू फिल द कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आता है आपका, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। ये सारी डिटेल्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको 4 कैटेगरी में डिटेल्स भरना है। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म व्यू एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स, your name, your father's name, your date of birth. Please be carefully fill that because सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है। जैसा कि आपने देखा, मैक्सिमम एज है एलिजिबल एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव इज 28, तो वो सिस्टम यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेगा। सो प्लीज बी केयरफुल, अगर आपने गलती से गलत भर दिया तो आपको कॉल ही नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लीज प्लीज ओके। Then you have to fill your address, contact details. Please ensure that कि आप ईमेल आईडी एक ही रखें जिसको आप चेक करते हो, क्योंकि बहुत बार कम्युनिकेशन आपको इसका ईमेल पे ही आएगा। तो अगर आप ईमेल ऐसा डाल देते हैं जो आप चेक ही नहीं करते हैं, सो यू विल मिस ऑन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। सो प्लीज प्लीज फिल द ईमेल दैट यू आर चेकिंग रेगुलरली। ईमेल्स के नोटिफिकेशंस ऑन कर देना ताकि इन केस इफ यू डोंट चेक इट और कुछ आता है तो आप मिस ना करें। अकेडमिक वर्क और एक्सपीरियंस डिटेल भरना है आपको, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, 12th, 10th और कोई क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस। प्लीज प्लीज केयरफुली फिल दैट। यहाँ पे कॉलेज का नाम सेलेक्ट करिए, आपका ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करिए, कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो आपको भरना है। सेम इज द केस विद ग्रेजुएशन। फुल टाइम कोर्सेज ही एलिजिबल हैं तो फुल टाइम पे जरूर क्लिक करिएगा। आपने गलती से पार्ट टाइम फिल कर दिया तो क्या बोलते हैं, आपको कॉल ही नहीं आएगा। कोर्स ड्यूरेशन में यूजली कोर्सेज चालू होते हैं जुलाई के महीने में। अ, अगर 2025 के आप पास आउट हैं तो आपका जुलाई या अगस्त 23 का एडमिशन होगा। और ये आप यूजली एग्जाम्स होते हैं मई या जून में, तो आपको मई या जून डालना है 2025। अब इसमें एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं होता है कब कॉलेज चालू हुए तो कब खत्म हुए थे, तो आप रैंडमली डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और टोटल 24 मंथ्स का कोर्स है तो आप मे बी बेस्ट होता है आप डाल दीजिए 1 जुलाई 2023। और जो भी आपका एंड डेट है, टेंटेटिव एंड डेट होगा ऑफ कोर्स, वो आप डाल दीजिए 30th जून। तो ये सिस्टम आपको एरर्स नहीं देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम सिस्टम पे स्पेंड मत करिएगा, अदरवाइज से लॉग आउट हो जाता है और आपकी डिटेल सेव नहीं होगी। तो इमीडिएटली क्या बोलते हैं, आप इसको भरते रहिएगा। ओके, एंड देन यू हैव टू फिल योर मार्क्स, वॉट एवर सिस्टम आपके कॉलेज में फॉलो होता है, CGPA। ओके, सो ओवरऑल CGPA एंड टोटल CGPA, लाइक योर CGPA एंड टोटल CGPA। ओके, एंड देन आपको आपका 12th भरना है, 12th के बारे में भरना है। 12th में यूजली कोई स्पेशलाइजेशन साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है,
whatever is the specialization just put it. Okay. बोर्ड नेम आप स्टेट बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है। सेम इसमें भी कोर्स ड्यूरेशन आप जुलाई से चालू करके जून में फिनिश कर दीजिए, 1 जुलाई से चालू करिए 30 जून को फिनिश कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फिल दिस, एंड देन आपके जो ग्रेड्स हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। देन 10th का भी सिमिलरली आपको भरना है। देन वर्क एक्सपीरियंस में और कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा किया है, बहुत बच्चे 12th ना करते हुए डिप्लोमा करते हैं तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, और या तो फिर आपकी और कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आप फिल करिएगा। वर्क एक्सपीरियंस में आपको पूरी डिटेल्स भरनी है, आपका एम्प्लॉयर कौन था, एम्प्लॉय आईडी क्या थी, और कब से कब तक आपने काम किया है। ओके, ये वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंस का यहाँ पे पूछ रहा है। सो रेलेवेंस मतलब क्या होता है कि देखिए टीसीएस इज एन आईटी कंपनी। अब आईटी कंपनी के हिसाब से आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना रेलेवेंट है, तो ये आपको देखना है। यूजली जो अगर आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम किया है तो भले ही अगर वो और कोई सेगमेंट में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या और किसी एरिया में हो, इट विल बी रेलेवेंट। मगर बट आप अगर कुछ और ही प्रोफेशन में थे, इवेंट मैनेजर थे या कहीं और काम करते थे, तो इट इज नॉट रेलेवेंट। सो प्लीज टेक अ कॉन्शियस कॉल। अगर आप टीचिंग कर रहे थे तो टीचिंग, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट की नहीं कर रहे थे तो अगेन दैट वुड ऑल्सो नॉट बी रेलेवेंट। बट स्टिल ये एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये आपका गैप काउंट नहीं होगा। अदरवाइज आप नहीं बताएंगे तो ये फिर गैप काउंट होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर, कोई चीज़ हमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ अभी छुपाते हैं तो बाद में वो बैकग्राउंड चेक में पता चल जाता है और फिर हमको बाद में प्रॉब्लम होती है। सो नेवर हाइड एनीथिंग। ओके, प्लीज डिस्क्लोज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। All the eligibility conditions has been explained very clearly, so please do mention. ओके, सो ऐसे आपको वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है, एंड देन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है कि आपको कोई करियर में ब्रेक है आपकी पढ़ाई में, या आपने कोई और कोर्स किया है या बैकलॉग है, तो इसमें आपको रेडियो बटन्स पे क्लिक करना है और ये डिक्लेरेशन आपको देना है कि सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं वो सही हैं। वंस यू डू दैट, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स की एक डिटेल्स हो गई है। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स भी भरना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टीसीएस में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको विदेश जाने के चांसेस मिलते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट काम आता है। एंड आई थिंक वो ज्वाइनिंग के टाइम भी पासपोर्ट डिटेल्स मांगते हैं, सो प्लीज अप्लाई फॉर पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ये कुछ अदर डिटेल्स हैं, कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस आती है, कुछ बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। सो वट एवर यू नो यू कैन मेंशन। एंड देन यहाँ पे आपको 2 रेफरेंसेस देना है। तो रेफरेंसेस सबसे अच्छा होता है कि आप अपने कॉलेज के टीपीयू का दें, और दूसरा एक ऐसे पर्सन का दें जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। सो आइडली दे कैन बी योर प्रोफेसर्स इन योर कॉलेज, और अगर आपके कोई अच्छे रिलेटिव हैं या कोई अच्छी पोजीशन पे कोई आपके नोन है तो आप उनका भी मेंशन कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स वन कॉन्टेक्ट शुड बी ऑफ योर टीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके सर्टिफिक अचीवमेंट्स वो पूछ रहा है, तो वट एवर अचीवमेंट्स, कुछ स्कॉलरशिप है या और कुछ है तो आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत कुछ इसका रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है वो फॉर द स्मार्ट कार्ड। सो जस्ट फिल द डिटेल्स और आपको आपका एक फोटो अपलोड करना है। सो नॉट नॉट समथिंग क्वाइट एनीथिंग टू बी कॉम्प्लेक्स अबाउट। एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से रिव्यू कर लेना कि जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वो सही है, कि ये फिर एक बार अप्लाई आपने कर दिया है तो चेंजेस करना मुश्किल होता है। सो प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। सो एंड देन आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप होम स्क्रीन से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म हियर। तो उसको डाउनलोड करके आप एक बार देख लेना कि सारी डिटेल्स सही हैं। उसके बाद आपका यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो इफ इट इज रिसीव्ड देन इट इज परफेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको पूरी एक्टिविटी का ट्रैकर दिखा रहा है कि आपने रजिस्टर कब किया था और एप्लीकेशन
कब फॉर्म फिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आपको टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई करना है, तो ये बहुत ध्यान से यहाँ यस करना है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो आपका कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज प्लीज सिलेक्ट ऑन यस, एंड वंस यू डू दिस देन ओनली योर एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे नियरेस्ट टीसीएस सेंटर, टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कर दीजिए, आपको ऑप्शंस दिखाएगा। And then once you do that you have to click on apply. टेस्ट सेंटर आप कौन सा लेना चाहते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन चूज दैट। एंड देन आपसे आपका जॉब लोकेशन भी पूछते हैं। टीसीएस बहुत सारी सिटीज में है, तो व्हाट इज योर प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, आपकी आप दो प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें ये पूरा आपको अलोकेशन उस बात पे डिपेंड करता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट कहाँ है, बट फिर भी कोशिश रहती है कि जो आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है वहीं पे आपको अलॉट किया जाए इन केस इफ यू आर सिलेक्टेड। सो प्लीज प्लीज फिल इट केयरफुली एज वेल। यहाँ पे जैसे ही आपको ये मैसेज आया, यू अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, दैट मीन्स यस यू हैव डन ऑल द स्टेप्स एंड नाउ यू कैन बी केयर फ्री अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। और बस अब आपको आपका मेल बॉक्स चेक करते रहना है, एंड दैट्स इट। जैसे ही आपको मेल बॉक्स पे कम्युनिकेशन आता रहेगा कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपके जो टेस्ट होने वाला है 20 मार्च को, and if you clear the test you will receive the communication again for the interview call. And so please keep checking your mailbox. So friends, I hope the entire process of TCS MBA hiring is clear to you. If you have any doubts, please let me know in the comment box. I will try to answer that. And do join our WhatsApp group, which इसकी लिंक WhatsApp ग्रुप की आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। हम इस हायरिंग के लिए बहुत कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज डू दैट, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज ये ओपन हायरिंग है, इसके लिए सब बच्चे, कोई से भी कॉलेज का बच्चा एलिजिबल है। हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमारे यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि कब इतनी अच्छी कंपनियों की हायरिंग आ रही है। सो प्लीज प्लीज स्प्रेड दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर करें, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली गिव देम अ जॉब। Okay, so I wish you all the best for this hiring. Thank you so much. Do like this video and follow us for more such interesting content on placement. आप हमारे channels में playlist पे और भी videos देख सकते हैं on interview preparation, and which will help you again for this hiring. Thank you so much.